Yes, a very good morning, students. And we are just going to start up with a new chapter, that is chapter number 8, Human Health and Diseases. We are just going to start up with the very next unit, that is your unit number 3rd of your book, that is which is dealing up with the human welfare. And here we are just going to start up with chapter number 8, that is Human Health and Diseases. Okay, so first we should talk about what is health and what is disease. Okay, so talking about disease, we've already learned this chapter in your class 9th. It was this chapter was discussed over there. It was present over there in your syllabi in class 9, and still we are just going to move ahead with that, talking about the disease. So here the word disease, it is derived from two words. It is made up of two words. This means this and ease means when the person is not feeling easy. This means not, and ease is easy. Clear? So when the person is not feeling easy, when the person is not at ease. Not at ease means the person is not comfortable. Okay, that very particular position or that very particular status of a particular person is said to be disease. Okay, so here according to the definition, disease can be anything. It can be either a headache, because a simple headache or any of the body ache or any pain in any part of the body make a person restless, uncomfortable. ठीक है, so that is a kind of a position of what to say, an uncomfortable position. Whenever we are talking about disease, it is always dealing up with an uncomfortable position, and it can vary from varied degrees. Okay, इसकी जो डिग्रीज हैं इट कैन वारी अकॉर्डिंग टू द डिजीज. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा आपका बॉडी एक हो सकता है, एक टूथ एक हो सकता है, एक हेडेक हो सकता है, वहाँ से लेकर के ड्रास्टिक डिजीजेस लाइक कैंसर, एड्स, एक्सेट्रा. ठीक है, ILDs, all these which are fatal for you all, they can be grouped under the category of diseases. Getting my words clear? So that is what is disease. So जब हम बात कर रहे हैं diseases की, next हम बात करते हैं health accordingly, क्योंकि आपके चैप्टर में वर्ड्स दो दिए हुए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. डिजीज हमने डिफाइन कर दिया. व्हाट इज डिजीज? दैट इज व्हेन द पर्सन इज नॉट एट ईज, व्हेन द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल. अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं हेल्थ के लिए जब हम डिफाइन कर रहे हैं, दैट व्हेन अ पर्सन इज फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, ही इज सेड टू बी हेल्दी. व्हेन अ person is not having disease, और इसकी दूसरी डेफिनेशन है that it is a state free of any disease. Okay, it can be defined as it is a state or which is free of any sort of disease, that can be defined as health. नॉर्मली हेल्थ जो है हम तभी बोलते हैं दैट अ पर्सन इज हेल्दी जब वो प्रॉपरली ग्रो अप कर रहा है, प्रॉपरली डेवलप कर रहा है, उसे किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई एलिमेंट्स नहीं, किसी तरह की कोई डिजीज नहीं है. ठीक है, एंड ही इज हैविंग अ हाई कैपेसिटी, हाई फ्लुएंसी इन डूइंग हिज ऑल टाइप ऑफ वर्क, डे टू डे वर्क. ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी मल्टीपल टाइम में इंक्रीज हो जाती है. दैट वेरी पर्टिकुलर थिंग इज डिफाइंड एज हेल्थ, और अ पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. क्लियर? सो अकॉर्डिंगली हेल्थ की जब हम बात कर रहे हैं, हेल्थ जो है यहाँ पर फर्दर ऑन जो है इट इज डिवाइडेड इन बाय 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ. दैट इज हेल्थ कैन बी अ पर्सन, health can be a person is said to be healthy, or health can be defined at physical, mental and social well-being of a person. Health aims at the physical, mental and social well-being of a person.
फिजिकल की जैसे अभी मैंने बात की कि आपकी बॉडी को किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, किसी तरह का कोई एलिमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई पर्टिकुलर सिंड्रोम नहीं है, ठीक है, एंड यू आर पर्टिकुलरली एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन, मीन्स योर बॉडी इज वेरी मच फ्री, it can do a large amount of the work, it is having its full efficiency, full energy to do all its physical as well as physiological processes completely, and its productivity is also very very high. In that very particular case we say that a person is physically healthy. Getting my words? ठीक है. जब हम बात करें मेंटल हेल्थ की, मेंटल हेल्थ यानी द पर्सन जो है इट इज़ फ्री ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, ऐसा कोई भी स्टेट जो कि उसे मतलब टेंशन, स्ट्रेस, ऐसी जो भी कोई कंडीशंस हैं वो किसी भी पर्सन को जब नहीं होती है, ठीक है, देन द पर्सन इज सेड टू बी मेंटली हेल्दी, बिकॉज मेंटल हेल्थ जो है डायरेक्टली आपकी फिजिकल हेल्थ से जुड़ी हुई है. जब कभी भी आप मेंटली जो है आप डिस्टर्ब रहते हैं, यानी आपको स्ट्रेस कंडीशन है, डिप्रेशन की कंडीशन है, या ऐसी और भी दूसरी कंडीशंस हैं जहाँ पर यू आर नॉट फीलिंग इजी एंड देर आर अ लॉट ऑफ थॉट्स इन योर माइंड, ठीक है, दैट वेरी पर्टिकुलर मेंटल हेल्थ इट डायरेक्टली हैज़ एन इफेक्ट ऑन द फिजिकल हेल्थ, वो शो हो जाता है आपकी फिजिकल हेल्थ के ऊपर. गेटिंग माई वर्ड्स? एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सोशल वेलबींग, जैसा कि अभी मैंने कहा कि जब कोई पर्सन फिजिकली वेल होगा, फिजिकली हेल्दी होगा, जब वो मेंटली हेल्दी होगा, तो इन दोनों ही पर्टिकुलर केसेस में उसकी व्हाट टू से जो प्रोडक्टिविटी है वो मैनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है मतलब उसकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाती है. प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो जाएगी, देन दैट वुड लीड टू सोशल वेलबींग ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर person. Getting my words? So we can say that health, it is not only defined by a single aspect, but it aims at the physical, mental and social well-being of any person. Getting my words? Clear? So moving ahead, health of any person, it can be affected by a large number of things. Health, it can be affected by a large number of factors. जैसे सबसे पहला आ जाएगा आपका सबसे पहला जो फैक्टर आता है दैट इज डिसऑर्डर्स, वेरियस टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसा कि हमने मेंडेलियन वाले चैप्टर में देखा था कि अ लार्ज नंबर ऑफ द डिसऑर्डर्स दे वर इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. जेनेटिक डिसऑर्डर्स यानी वो डिसऑर्डर्स या वो एलिमेंट्स जो कि किसी भी ऑफस्प्रिंग को उसके पेरेंट्स से आकर के मिलते हैं, दे आर सेड टू बी द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. गेटिंग माई वर्ड्स? क्लियर? लार्ज नंबर ऑफ द एग्जाम्पल्स आर देयर, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस है, XYZ आपके बहुत सारे, मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया है ना, इस तरह की बहुत सारे डिसऑर्डर्स जो कि मैंने आपके साथ में डिस्कस किए हुए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, एंड दे आर इनहेरिटेड from the parents to the offsprings, means these are passed on from the parents to the offsprings. Clear? So ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं ये ऑफस्प्रिंग्स टू ऑफस्प्रिंग, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन की जाते हैं, एंड दे डू हैव एन इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. गेटिंग माई वर्ड्स? देन सेकेंड जो आता है दैट इज इन्फेक्शन. इन्फेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इन्फेक्शन इज अ स्टेज ऑफ invasion by various microbes. It is a stage of invasion of the body by various microbes. A stage of invasion of body by various microbes. Getting my words? वेरियस माइक्रोब्स जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं पैथोजेंस. ये जो माइक्रोब्स हैं दे डू एक्ट एज पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are capable of causing any sort of disease or ailment
in our body. These are those living organisms which are capable of producing any disease or ailment in our body. ठीक है, ऐसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डिजीज या एलिमेंट जो है कॉज कर सकते हैं, उन सबको हम कैटेगराइज करते हैं इनटू द कैटेगरी ऑफ पैथोजेंस. ठीक है, पैथोजेंस दे कैन बी व्हाट टू से स्लाइटली इन्फेक्शियस एंड दे कैन बी लीथल ऑल्सो. गेटिंग माई वर्ड्स? अ लार्ज नंबर ऑफ द पैथोजेंस आर देयर एंड इनकी जो रेंजिंग है, इट इज रेंजिंग फ्रॉम द very unicellular acellular viruses up till the multicellular parasitic organisms. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं माइक्रोब्स की तो पैथोजेंस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू वेरियस टाइप्स, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, ठीक है, देन फंजाई, of course various types of itching, various types of what to say skin lesions, they are all the causative agent, they are all caused by fungi. Then what to say a large number of what to say multicellular pathogens that are parasitic pathogens. Parasitic pathogens. Okay, so when we are talking about the viruses में आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कॉमन कोल्ड. ठीक है, कॉमन कोल्ड. हालांकि मैं इन सबको अभी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इन सारे ही जो आपके पैथोजेंस हैं उनको सबको डिटेल में आप डिस्कस करने वाली हूँ, लेकिन जस्ट टू गिव अ सिनेरियो ऑफ पैथोजेंस एंड माइक्रोब्स डीलिंग विद आवर बॉडी. ठीक है, वायरसेस की जब हम बात कर रहे हैं, वायरसेस में पहला एग्जांपल जो आता है, वेरी कॉमन एग्जांपल, दैट इज योर कॉमन कोल्ड. ठीक है, दूसरा आता है आपका HIV एड्स. ओके, बैक्टीरिया से कॉज होने वाली डिजीजेस आप जानते होंगे, टाइफाइड, कॉलेरा. फंजाई से वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन लीजन्स और स्किन एलर्जीज. ठीक है, पैरासाइटिक पैथोजेंस में बहुत सारे हैं, जैसे विचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई है, विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटाइसिस. ठीक है, इसके अलावा आपका ट्रैपेरोसोमा है जो कि ट्रैपेरोसोमाइसिस कॉज करता है. ठीक है, देन फाइलेरिया है जो कि फाइलेरियासिस कॉज करता है, एंड सो ऑन. अ लार्ज नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर विच आर अफेक्टिंग आवर हेल्थ एडवर्सली. ठीक है, सो अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर देयर, राइट. एलिफेंटाइसिस, फाइलेरियासिस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, इसके अंदर आपका मलेरियल पैरासाइट भी आ जाएगा. मलेरियल पैरासाइट जो है आपका कॉज करता है मलेरिया. Getting my words? So these are all the various type of the pathogens that are affecting our health, and not only our health, it is also affecting the productivity as well as the prosperity of our nation. Because जब हम healthy नहीं रहते हैं तो हम ज़्यादा amount of physical work नहीं कर पाते हैं. अगर हमारी body ज़्यादा amount of physical नहीं कर पाती है, then productivity कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और जब हमारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, सो इट इज़ हैविंग अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द productivity of the nation plus the prosperity of the nation. Therefore every nation aims to maintain the physical well-being of all its what to say nation members. Getting my words clear? So now these were the what to say various type of the microbes that were positive agents of infections. ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा कॉज है आपकी बॉडी में किसी भी तरह की एलिमेंट या डिजीज कॉज करने के लिए, वो होता है योर लाइफस्टाइल.
आजकल जो है लाइफस्टाइल जो है इट इज़ द बेसिक रूट कॉज ऑफ कॉजिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज इन डिफरेंट ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जैसे रात को देर से सोना, सुबह देर से जागना, प्रॉपर मील्स नहीं लेना, गेटिंग माई वर्ड्स, फुल टाइम टीवी देखना एंड इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी देर लंबे समय तक कंप्यूटर के सामने बैठना, तो ये सब जो चीज़ें हैं दे आर गिविंग यू वेरियस टाइप ऑफ द डिजीजेज, वेरियस टाइप ऑफ द डिसऑर्डर्स. गेटिंग माई वर्ड्स, हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में जंक फूड्स जो हैं उनका इनटेक कर रहे हैं. अगेन जो है दीज आर द वेरी रूट कॉजेज ऑफ कॉजिंग और क्रिएटिंग सेवरल टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स in our body. Getting my words? So all these are the causes of affecting health in our body. Now next I would like to deal up with diseases. जैसे कि मैंने आपको disease के बारे में बताया ही है कि diseases जो हैं diseases are the state of uneasiness or uncomfortableness. Clear? एंड अकॉर्डिंगली हम डिजीजेस को जो है व्हाट टू से दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला जो है दैट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस और दूसरी जो है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी वो डिजीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर सकती है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट की जा सकती है. दे आर सेड टू बी इन्फेक्शियस डिजीजेस. दोज डिजीजेस which can be transmitted from one person to another person. इन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल है. आपका कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू. कॉमन कोल्ड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. ठीक है, दैट इज इन्फेक्शियस. इसके अलावा HIV, AIDS, that is also very very good example of what to say infectious diseases, plus it is lethal. Getting my words? And nowadays जो अभी बर्निंग चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दैट इज COVID-19, दैट इज कोरोना. ओके, so you can also include that very new type of a disease which the human race has met up with. Clear? Now talking about the non-infectious diseases. When we are talking about the non-infectious diseases, वो diseases जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट नहीं की जा सकती है या पास ऑन नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. दोज डिजीजेस which cannot be transmitted from one person to another person are said to be non-infectious diseases. एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है. कैंसर सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है दैट इज कैंसर. कैंसर जो है इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. नॉन इन्फेक्शियस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी बोल सकते हैं. नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्लियर? कैंसर जो है इसका वेरी गुड एग्जाम्पल है. प्लस इट इज़ लीथल ऑल्सो. क्लियर? लीथल मीन्स इट प्रूव्स टू बी फेटल
under certain very condition, most of the conditions, it is trying to be fatal. Clear? So we have done all these type of the diseases and what are the root causes of health of causing a disease. Okay, in my next video I'll be dealing up with the various pathogens and the various type of the disease that are caused by various type of the microbes and various type of the pathogens. Till then, thank you.